وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے رات 8 بجنے کا انتظار کر رہی تھی، جو وہ روز کرتی تھی، کیونکہ اس وقت اسے ایان سے ملنے چھت پہ جانا ہوتا تھا۔ جب سے اس نے اسکول چھوڑا تھا، ایان سے ملاقات بس چھت تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی، ورنہ تو اسکول آتے جاتے اور بس میں سوار ہوتے اس کی نظروں کے مسلسل حصار میں ہوتی تھی، مگر میٹرک کے بعد وہ گھر تک ہی محدود ہو گئی تھی۔ ایان اب کالج جانے لگا تھا، مگر آمنہ کے ماں باپ فیس افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اسے پڑھنے کا خواب ادھورا رہ گیا تھا۔ اچانک موبائل پر لگے الارم نے اس کی سوچوں کو توڑا۔ وہ جلدی سے موبائل بند کرتی، اپنا دوپٹہ درست کرتی کمرے سے نکل آئی۔ اماں ابا کو کھانا کھلا کر سلا دیا تھا، وہ جلدی سو جاتے تھے، اس لیے وہ بے فکر سی چھت پر جانے لگی۔ چھت پر جانے کے بعد وہ آج کچھ زیادہ شدت سے ایان کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ آج اسے ایان سے اہم بات کرنی تھی۔ ایان اور آمنہ کا گھر قریب قریب تھا، درمیان میں بس ایک چھت کا فاصلہ تھا، جو عبدالصمد صاحب کے گھر کی تھی۔ ایان اس چھت کو کراس کر کے اس تک پہنچتا اور کئی پہر وہ باتیں کرتے رہتے۔ ایان اسے کالج کی باتیں بتاتا کہ آج اس نے کیا کیا پڑھا، کون کون سے نئے دوست بنائے، اور آمنہ بس اسے سن کر ہی خوش ہوتی رہتی۔ وہ پہلے ایک دوسرے کے دوست تھے، اور پھر ایان نے اس دوستی کو محبت میں بدل دیا تھا، اس سے اظہار محبت کر کے۔ تب سے آمنہ ہواؤں میں اڑا کرتی تھی۔ ایان اس محلے کا سب سے امیر اور خوبصورت لڑکا تھا۔ آمنہ بھی حسن سے کسی سے کم نہ تھی، گوڑی چٹی، گول مٹول، معصوم چہرے والی اور سبز آنکھوں والی، بالکل کسی پٹھانی کی طرح لگتی تھی۔ اسی لیے تو ایان اس کے علاوہ کسی دوسری لڑکی کی جانب دیکھتا بھی نہیں تھا، اور آمنہ کو اور کیا چاہیے تھا، اسے ایان جیسا ہی چاہنے والا مل گیا تھا۔ تھوڑے سے انتظار کے بعد بالآخر وہ چھت پھلانگتا ہوا اس تک آیا۔ آج اس نے سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ موسم اتنا سرد نہیں تھا، اس لیے سویٹر سے محروم تھا اور اس کے قریب آ چکا تھا۔ درمیان میں صرف ایک منڈیر کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ آمنہ کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھر گئی۔ ایان بھی مسکرا رہا تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آمنہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ وہ ایک ہی جس میں اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا آمنہ کا نازک مومی ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ چکا تھا۔ تمہیں دیکھ کر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ اس کے لہجے میں والہانہ محبت تھی کہ آمنہ نہ چاہتے ہوئے بلش کرنے لگی، پھر جلدی اپنی حالت سنوارتی ہوئی اصل بات کی طرف آئی۔ اصل میں مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی ایان۔ وہ سنجیدہ تھی۔ ایان چونکا۔ ہاں بولو۔ اس کا ہاتھ ہنوز پکڑ رکھا تھا۔ مجھے تمہاری ایک ہیلپ چاہیے۔ وہ کافی سنجیدہ تھی۔ ایان حیران ہوا، کیسی مدد؟ آمنہ کو اب جانچتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تم نے بتایا تھا نا کہ تم پارٹ ٹائم کسی کمپنی میں جاب کرتے ہو، تو پلیز کیا تم میرے لیے وہاں بات کر سکتے ہو؟ میں ہر کام کر لوں گی، میں پڑھنا چاہتی ہوں ایان پلیز۔ اور تم جانتے ہو ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں، اماں ابا مجھے کبھی نہیں پڑھا سکیں گے، لیکن مجھے پڑھنا ہے، اور اب میں چاہتی ہوں کہ میں خود اپنے بل بوتے پر پڑھوں، اور میں چاہتی ہوں تم میری مدد کرو۔ ایان تم کرو گے نا؟ اس نے بہت امید اور مان سے ایان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ایان کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ کچھ دیر وہ سوچتا رہا۔ تم جانتی تو ہو آمنہ، تم نے صرف میٹرک کر رکھا ہے، اور میٹرک کی لڑکیوں کو نوکریاں نہیں ملتی۔ اس کی اتنی صاف گوئی پر آمنہ کا چہرہ تذلیل کے احساس سے سرخ پڑا۔ اس نے نامحسوس انداز میں اپنا ہاتھ ایان کے ہاتھ سے نکالنا چاہا۔ ایان نے اس کے چہرے پر ناراضگی دیکھتے ہوئے جلدی سے اپنی بات کی تصحیح کی۔ لیکن پھر بھی میں پوری کوشش کروں گا اور تمہیں نوکری دلواؤں گا، بس تم پریشان مت ہو اور مجھ سے ناراض تو بالکل بھی نہ ہو۔ اس کی چھوٹی سی پیاری سی ناک دباتا ہوا بولا۔ تو اس بار نہ چاہتے ہوئے بھی آمنہ مسکرا پڑی۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا ایان؟ وہ ایک بار پھر تردید چاہنی، تو ایان نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر اس کے بعد وہ ایک بار پھر سے کالج میں ہوئے واقعات بتانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ان دونوں کی مسکراہٹ خاموش ماحول میں دور دور تک جا رہی تھی۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد ایان نے وقت دیکھا، جو رات کے 10 بجنے والے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ اتنا کہتے وہ آمنہ کو اللہ حافظ کہتا واپس پلٹ گیا۔ آمنہ کو آج ایک الگ سا احساس ہو رہا تھا۔ سب کچھ پا لینے کی امید تھی جو جاگ گئی تھی۔ وہ واپس نیچے آئی، پھر اپنے چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے پوری امید تھی کہ ایان اس کے لیے کچھ بھی کر گزرے گا اور اسے نوکری تو دلوا کر ہی رہے گا، اور اس کی بات بالکل سچ ہوئی۔ اگلی رات دوبارہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مبارک ہو، تمہاری نوکری لگ چکی ہے،
और आमना ने खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस किया। थैंक यू सो मच अयान, तुम बहुत अच्छे हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अयान की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। एक बात याद रखना, अब तुम्हारी नौकरी लग गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे अलावा किसी और को अहमियत दो या मुझे भूल जाओ। वहाँ पर ज़्यादा किसी से बात करने और घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे ही इंसिक्योर हुआ था। आमना ने उसके लहजे में साफ गुस्सा महसूस किया। तुम परेशान क्यों हो रहे हो अयान? तुम सिर्फ मेरे वाहिद दोस्त हो, मैं क्यों तुम्हारे अलावा किसी को दोस्त बनाऊंगी? उसने अयान की इनसिक्योरिटी दूर करनी चाहिए, मगर वो मुतमईन नहीं हो सका। मैं जानता हूँ वहाँ मुझसे अच्छे लड़के देख तुम उनकी तरफ माइल हो जाओगी, मगर एक बात याद रखना आमना, सिर्फ तुम्हारे हुस्न की वजह से ही मैंने तुम्हें वहाँ पर नौकरी दिलाई है, और ना मैट्रिक पास को कोई नौकरी नहीं देता। वो जैसे जता रहा था कि तुम्हें नौकरी दिलवाने के पीछे मेरा हाथ है। न जाने उसने अपने बॉस से क्या बात की थी, मगर आमना को नौकरी मिल चुकी थी। आमना हजल सी हो गई। मैं जानती हूँ अयान कि मुझे ये नौकरी तुम्हारी वजह से मिल रही है। तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें भूल कर किसी और के बारे में सोचूंगी? उसने अयान को हर तरह से मुतमईन करना चाहा, मगर उसे लग रहा था जैसे अयान कुछ ख़ास खुश नहीं था। क्या तुम्हें मेरा नौकरी करना पसंद नहीं? तो मैं छोड़ देती हूँ। मैं नहीं करती नौकरी। जब उसने देखा कि अयान का मूड अभी भी सख्त ख़राब है तो उसने आखिरी दिल में खलिश को दूर करना चाहा। उसने देखा कि अयान के चेहरे पर अजीब सी बौखलाहट आई थी। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, तुम अपनी नौकरी करो, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हो और पढ़ो। और फ़ौरन नॉर्मल हो गया। इस सवाल के बाद दोबारा अयान के चेहरे पर बेजारियत या फिर गुस्सा नहीं था। तो आमना भी पुरसुकून हो गई, मगर कुछ था जो उसे खटक रहा था। अम्मा अब्बा तो सो चुके थे, इसलिए उसने अम्मा अब्बा को बताने का सुबह फैसला किया और अगले दिन उसे ऑफिस जाना था। मगर चूँकि अयान पहले कॉलेज जाता था, इसलिए अयान के साथ नहीं जा सकती थी। सुबह ही सुबह वो अम्मा के सामने बैठी उन्हें बता रही थी। तू सच कह रही है अम्मा? अम्मा ने बेयकीनी से पूछा। हाँ अम्मा, बिल्कुल सच कह रही हूँ। अयान ने ही मेरी नौकरी लगवाई है, बस आप मुझे नौकरी करने दोगी ना? उसने डरते हुए माँ से पूछा। पास ही अब्बा बैठे हुए थे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, नौकरी करेगी तू और हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। अम्मा की बात सुनते आमना एकदम पुरसुकून हो गई। इसका मतलब अम्मा को इसकी नौकरी करने से कोई इतराज़ नहीं था। अम्मा, मुझे आज ही जाना होगा। उसने इतना कहा कि अम्मा हड़बड़ा गई। तो फिर यहाँ बैठी क्या कर रही है? जाकर तैयार हो, और हाँ, अच्छे कपड़े पहन कर जाना। सुना है जो बड़े बड़े ऑफिस में काम करते हैं ना, वहाँ अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर जाएं तो ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है। अम्मा की बात पर वो हंस पड़ी। फिर इस बात में सर हिलाती वो अपने कमरे में दाखिल हुई और अपना छोटा सा अटैचीज केस खोले अपना सबसे अच्छा सूट दिख रही थी। मगर कोई भी सूट इतना मुनासिब और अच्छा नहीं था कि वो उसे ऑफिस पहन कर जा पाती। अचानक उसे याद आया कि कुछ महीने पहले उसे अयान ने एक सूट गिफ्ट किया था, मैरून रंग का सादा सा सूट, जिसने आज तक संभाल कर रखा था, एक बार भी पहन कर नहीं देखा था। आमना के जहन में झमाका सा हुआ। यकीनन अब वो सूट को पहनकर जा सकती थी। जल्दी से उसने अपने कपड़े निकाल कर तैयार हुई और 9 बजे ही वो घर से निकल आई। 10 बजे वो उस ऑफिस में मौजूद थी। समझ नहीं आ रही थी कहाँ से शुरुआत करे। रिसेप्शन पर आकर उसने अपना नाम बताया, सलाम लिया, फिर उस रिसेप्शनिस्ट को देखा। वो मैम, एक्चुअली मेरा नाम आमना रियाज है, वो मैं जॉब के सिलसिले में आई थी। वो हिचकिचा रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने एक नज़र उसे सरता पैर देखा। उसकी नज़रों में अजीब सी हकारत और नागवरियत थी, जो आमना को साफ महसूस हुई, जैसे वो आमना के नाम से ही जान गई थी कि आमना काम के लिए ही आई है। 3rd फ्लोर पर जाकर आपने लेफ़्ट टर्न कर लेना है, वहीं पर हमारे बॉस का केबिन है, वही आपको बताएंगे कि आपका क्या काम है। वो आखिरी बात पर दांत पीस कर घर आई थी। आमना ने हैरत से उसे देखा। कैसी अजीब सी रिसेप्शनिस्ट थी। वो मुंह में बड़बड़ाती हुई लिफ्ट की जानिब बढ़ गई। 3रे फ्लोर में दाखिल होते और फिर रिसेप्शनिस्ट की हिदायत की हुई डायरेक्शन में चलना शुरू हुई। वहाँ बाहर इसे कंपनी के मालिक की पीए बैठी हुई दिखाई दी। उसके करीब आई, उसे अपने बारे में बताया तो पीए के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। आ जाए मेरे साथ। वो इसे लेकर अपने साथ अंदर केबिन की जानिब बढ़ गई। वो अंदर दाखिल हुई तो कोई 30 से 35 साल शख्स सूट बूट पहने बैठा था। सर, आमना आ चुकी है, पीए ने मुस्कुराते हुए बताया।
सामने बैठे शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। उसने नज़रें उठाए आमना को देखा, फिर हाथ से सामने बैठने का इशारा किया। आमना झिझकते हुए आगे बढ़ी और कुर्सी खींचते उसके सामने टेबल के उस पार बैठ गई। वो गौर से आमना के चेहरे को देख रहा था। बिलाशुबा वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जितना उसने अयान से सुना था उससे ज़्यादा ही थी। सो मिस आमना, आपकी तलीम चौके मैट्रिक है, मगर सिर्फ अयान के इसरार पर मैंने आपको यहाँ बुलाया है कि चले मैं एक बार खुद आपसे मिलूं और आपको देख लूं। शायद आपके लिए कोई गुंजाइश बन ही जाए। आमना ने खुद को पूरा एतमाद करने की कोशिश की, मगर उसका एतमाद हवा हो रहा था। जी सर, वो बामुश्किल ही बोल सकी थी। ओके, तो ठीक है, फिर आपको मेरी पर्सनल असिस्टेंट के फ़राइज़ सर अंजाम देने होंगे। वैसे तो ऑफिस में मेरे साथ मेरी पीए होती है। उसने हाथ से पीछे खड़ी पीए की जानिब इशारा किया। मगर मुझे अक्सर मीटिंग्स के सिलसिले में ऑफिस से बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में जाना पड़ता है। उस वक़्त मेरे साथ कोई नहीं होता, बट आज से आप मेरे साथ जाया करेंगी। मुझे कहीं भी जाना हो तो इज़ दैट क्लियर? अगर आपको इस नौकरी पर एतराज़ है तो अभी जा सकती हैं, वरना जाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। वो बहुत ही अजीब नज़रों से आमना को देखते अजीब से लहजे में कह रहा था, मगर आमना उसकी इतनी गहरी बातें समझ ही ना सकी थी। कुछ देर सोचती रही और सर सैलरी, और वो मुश्किल ही बोल सकी थी। सामने वाले के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई। 50,000 अगर कम है तो ज़्यादा कर दूंगा। वो इतनी जल्दी बोला कि आमना की आंखें हैरत से फटने के करीब आई। शायद सारी ज़िंदगी उसने 50,000 की शक्ल भी नहीं देखी थी। वो कुछ पल सोचती रही। जल्दी फैसला कर ले मिस आमना। बॉस की बात पर उसे मज़ीद सोचने समझने मफलूज कर दिया था। मुझे मंजूर है। वो जल्दी से मान गई थी। मालिक के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई। ओके तो मिस आमना, वेलकम टू द बिजनेस वर्ल्ड ऑफ उमर खान। उसने तारीफ़ करवाया, अपना हाथ फैलाया, मगर आमना ने झिझकते हुए अपना हाथ कुछ पीछे कर लिया, जैसे वो इसे हाथ मिलाने में कुछ शर्म महसूस कर रही हो। उमर के चेहरे की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो फिलहाल आमना समझने से कासिर थी। जाए काशिफा, इन्हें ज़रा मेरा काम समझा दे। पीछे करी गालबन अपनी पीए से वो मुखातिब हुआ। पीए ने इस्पात में सर हिलाया और वो इस पीए के साथ केबिन से बाहर निकल आई। अब उसे उसकी पीए ही समझा रही थी, जब वो बाहर जाते तो सबसे पहले अपना हुलिया ठीक करते हैं। अगर तुम इस तरह मासी बनी बाहर जाओगी तो सारे तुम पर नहीं बल्कि हमारे बॉस पर ही हंसेंगे। इसलिए पहले तुम अपना पहनना ओढ़ना ठीक करना पड़ेगा। और अब तुम एक ऑफिस में काम करती हो, किसी गली मोहल्ले में नहीं, इसलिए पहले तुम्हें प्रोफेशनल होना पड़ेगा। वो शाइस्तगी और नरमी से समझा रही थी। आमना ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। चलो फिर आउटफिट देखते चलते हैं। वो हैरान हुई, मगर कहाँ? आमना ने परेशानी से पूछा। फिक्र मत करो, यही कंपनी में है। वर्कर्स के लिए हर तरह की ड्रेसेस मौजूद है जो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें कोई पैसा नहीं लेना पड़ेगा। काशिफा की बात सुनते आमना को कुछ हौसला हुआ। वो मुस्कुराती हुई उसके साथ अब वहाँ कंपनी में बने उस हाल नुमा कमरे में जा रही थी। वो कमरे में दाखिल हुई और अब काशिफा तमाम रैक्स को देखती आमना के हिसाब से कोई ड्रेस निकाल रही थी। और आमना इतना खूबसूरत और लग्जरी कमरा देखते हुए हैरत से गंग रह गई थी। ज़िंदगी में पहली बार उसने इतना खूबसूरत कमरा देखा था। वहाँ वेस्टर्न ड्रेसेस एक से बढ़कर एक और बहुत ही खूबसूरत प्यारे थे और बहुत बढ़िया थे। आमना की आंखों में चंदिया आ गई थी। उसने ज़िंदगी में पहली बार इस तरह के कपड़े देखे थे और वो हाथों से छू भी सकती थी, जिससे यकीन ही नहीं हो रहा था। बलाखिर काशिफा ने डिसाइड कर लिया कि एक कास्टी कलर की कुछ रेशमी टाइप शर्ट निकालते उसने आमना के हाथ में थमाई। उसके साथ वाइट जीन्स निकाली। चलो, वो रहे चेंजिंग रूम, जाओ वहाँ और चेंज करके आओ। आमना ने हैरत से उन कपड़ों को देखा, लेकिन मैंने कभी आज से पहले ऐसे ड्रेसेस नहीं पहने। कुछ झिझकते हुए आमना ने बताया तो काशिफा के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई। मुझे देख रही हो? उसने सवालिया आईब्रो झुकाई। आमना ने इस बात में सर हिलाया। मैं भी पहले तुम्हारी ही तरह होती थी। देखो यहाँ काम करते मैं कितनी चेंज हो गई हूँ। और उसने हैरानी से उसे देखा। काशिफा के चेहरे पर मेकअप था, बाल खुले हुए थे, बहुत खूबसूरती से उसके बालों को कर्ल किया गया था। उसने कपड़े भी वेस्टर्न ही पहन रखे थे। वो इस वक्त बिल्कुल एक पीए ही लग रही थी। फिक्र मत करो,
तुम भी चेंज करोगी, बस आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है। खैर, तुम जाओ और चेंज करके आओ। आमना का दिल अजीब से अंदाज में धड़का था। उसे बहुत कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। उसे ऐसे कपड़े पहनने का कोई तजर्बा ना था और ना ही वो ऐसे कपड़ों में कंफर्टेबल हो सकती थी। मगर काशिफा के जोर देने पर वो चेंज करने की गर्ज से चेंजिंग रूम में चली गई। 10 मिनट बाद बहुत हिम्मत करते वो बाहर निकली। उसने अपना दुपट्टा गले में डाल रखा था और इस लुक में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरती देखते काशिफा की आंखें चमक गई। यहाँ आओ, अब उसे अपने पास आने का इशारा कर रही थी। आमना कुछ झिझकते हुए करीब आई। चलो, अब तुम्हारे बालों को भी कोई अच्छा सा स्टाइल देते हैं। इतना कहते उसके बालों को खोल चुकी थी। उसके लंबे कमर तक आते काले स्याह बाल आबशार की सूरत उसकी कमर पर बिखर गए थे। कुछ ही देर में काशिफा ने उसके बालों को एक खूबसूरत सा जोड़ा बना दिया। फिर उसके चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप किया और जब आमना ने खुद को शीशे में देखा तो हैरान रह गई। क्या ये सच में मैं हूँ? वो बस बेयकीनी से पूछ रही थी। काशिफा मुस्कुरा पड़ी। बिल्कुल, ये तुम ही हो। तुम इतनी खूबसूरत हो, जो कि बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। तुम इस खूबसूरती से लाखों कमा सकती हो आमना। काशिफा की बात पर आमना चौंकी, मगर काशिफा जल्दी से अपनी बात वहीं छोड़ चुकी थी। खैर, रात को 8 बजे बॉस की मीटिंग है और 7 बजे तुम्हें उनके साथ जाना है। आमना हैरान हुई, मगर इतनी रात को तो फिर वापस घर कैसे जाऊंगी? उसने परेशानी से पूछा। काशिफा के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिक्र मत करो, तुम्हें बॉस खुद घर छोड़ाएंगे। इस बात की तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जब तुम उनके साथ जाओगी तो फिर तुम्हें वो खुद ही बाहिफाजत पहुंचा देंगे। काशिफा नरमी से उसका गाल थपथपाती हुई से अपने साथ लिए अब दोबारा उमैर खान की ऑफिस की जानिब आई और उमैर तो काशिफा की तरफ हैरानी और फटी फटी निगाहों से देख रहा था। क्या ये सच में आमना ही है? काशिफा ने इस बात में सर हिलाया। जी देखिए ना सर, कितनी अच्छी लग रही है। इसकी डिसेंट लुक देखते हुए जहां आमना के जिस्म में कपकपाहट उतर रही थी, वहीं काशिफा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी थी। वेरी गुड, ठीक है, फिर हम 7 बजे निकलेंगे। तब तक इसका केबिन दिखा दो इसको। इसकी बात सुनते काशिफा इस बात में सर हिलाती बाहर निकल गई। फिर उसे लिए अपने डेस्क के पास जा पहुंची। फिलहाल तो यहीं बैठो, तुम्हारे केबिन में कुछ मसला है, वो तैयार होगा फिर तुम्हें दिया जाएगा। और आमना हैरान हो रही थी। यकीन नहीं हो रहा था कि आज का दिन उसकी ज़िंदगी का इतना खूबसूरत दिन होगा। बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे कमाएगी वो और फिर अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। 7 बजे उमैर अपने ऑफिस से बाहर निकला। हमें जाना है मिस आमना, सख्ती से हदायत की। आमना ने भी अभी तक गले में अपना वो मेहरून दुपट्टा ही ले रखा था। काशिफा ने 2-3 बार मना भी किया, मगर उसने कहा कि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। उसे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे कपड़ों की आदत होगी। फिर काशिफा ने उसके गले में वो दुपट्टा मफलर स्टाइल में डाल दिया था ताकि वो भी इसके स्टाइल का एक हिस्सा ही लगे। आमना ने इस बात में सर हिलाया और उसके बाद वो उमैर की तकलीद में राहदारी की जानी पड़ने लगी। पार्किंग तक आकर ड्राइवर ने गाड़ी निकाली। वो पीछे बैठ गया और आमना को भी बैठने का इशारा किया। उसके साथ ही दूसरी साइड का दरवाज़ा खोले बैठ गई थी। उसके बाद गाड़ी में मुकम्मल खामोशी रही। आधे घंटे बाद गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर रुकी। देखने से तो वो कोई स्टाइलिश और लग्जरियस रेस्टोरेंट लग रहा था। रेस्टोरेंट के बाहर ही उमैर खान की कंपनी का लोगो था, यानी कि वो रेस्टोरेंट भी उसी का ही था। मगर ये बात फ़िलहाल आमना की समझ से बाहर थी। वो रेस्टोरेंट में उसकी तकलीद में अंदर दाखिल हुई। यहाँ पर हर तरफ मेहमान का अच्छे से वेलकम करना। आप मेरी पीए हैं मिस आमना, और कोई भी शिकायत का मौका नहीं देना। फ्रीली होकर बहुत नरमी और शाइस्तगी से बात करनी है कि मेरे मेहमानों को लगे कि आप बहुत अच्छी पीए हैं। आमना उसकी बात समझते इस बात में सर हिला रही थी। आप यहीं रुके, मैं ज़रा ऊपर से होकर आता है। कुछ ही देर में मेहमान आ जाएंगे, आपने बस उनको वेलकम करना है। और वेलकम कैसे करना है यकीनन आपको काशिफा ने सिखा दिया होगा। आमना के चेहरे पर तजब्ज़ब देखते ही उसने सवालिया आईब्रो झुकाई। तब वह मुश्किल आमना ने इस बात में सर हिलाया और अगले ही पल ऊपर गायब हो गया। मगर आमना हैरान परेशान वहीं खड़ी रह गई। काशिफा ने कहा था कि जो भी आएगा उसे बस वेलकम करना है। कुछ ही देर में सूट बूट पहने लोग रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। वो सारे शख्स एक से बढ़कर एक हैंडसम और एक से बढ़कर एक अमीर थे। उनकी नज़र भी आमना तक जा चुकी थी
और आमना को काशिफा की बातें याद आई। उसे समझाया था उसे किस तरह रिएक्ट करना है। ये सब सोचते वो उनके पास पहुंची। वेलकम सर, प्लीज़ आइए। उमैर सर ज़रा ऊपर गए हैं, आप प्लीज़ बैठ जाइए। काशिफा की हिदायत पर अमल करते उसने एक ही सांस में सारी बात बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कही थी। उन सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। वो सारे आसपास गोल गोल घूमते उसे अब देखने लगे थे। ओह, तो तुम्हें लाया है आज उमैर यहाँ? इनमें से एक ने हंसते हुए कहा। आमना को हैरत होने लगी। वो बामुश्किल ही अपने जज्बात पर काबू पा रही थी। जी सर, बामुश्किल ही बोल सकी। तुम इतनी खूबसूरत हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उमैर के पास इतनी अच्छी पीए भी हो सकती है। वैसे आज से पहले जितनी भी पीए यहाँ पर लाया है वो सारी बहुत खूबसूरत थी, मगर तुम में कुछ अलग ही बात है। अब के दूसरे ने कॉम्प्लीमेंट पास किया। उनकी ऐसी बातें आमना को अजीब सी लग रही थी और मुश्किल में डाल रही थी। उसे याद आया, उसे ये नौकरी अपने हसीन होने की वजह से ही तो मिली थी। उसे अचानक काशिफा और आयान की बातें याद आई तो उसे कुछ होश सा हुआ। इतनी खूबसूरत हो, फिर अपनी खूबसूरती को इस तरह छुपा के क्यों रखा है? ये दुपट्टा तो पीछे करो। अब कोई तीसरा भी बोला था, मगर इस बार आमना के चेहरे की सारी बहादुरी हवा हुई। अगर उस दुपट्टे को तुम गले से निकाल दो तो ज़्यादा प्यारी लगोगी। चौथे ने कहते उसके गले से दुपट्टा निकाल दिया और आमना को लग रहा था जैसे वो बरहना हो गई हो। सर प्लीज़, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, अभी जॉब का फर्स्ट डे है इसलिए, उसने आजसी से कहा और सारे खिलखिला कर हंस पड़े। उनसे दुपट्टा मांगने लगी, मगर वो शख्स दुपट्टे वाला हाथ ऊपर कर चुका था। दुपट्टा चाहिए? अरे ले लो। कुछ ही देर में आमना ने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो सारे जिस तरह कहके लगाकर हंस रहे थे, उनकी कंपनी बहुत बुरी थी। सर प्लीज़, उनके तरले करने शुरू कर चुकी थी। इतने में एक ने आमना का हाथ पकड़ लिया। ऐसी भी क्या मजबूरी है कि तुम इस काम के लिए मजबूर होगी? अगर नौकरी चाहिए थी तो हमसे मांग लेती। खूबसूरत हो, समझदार भी हो, पढ़ी लिखी भी लगती हो, मगर बहुत कम उम्र हो। वो शख्स शायद आमना से हमदर्दी करना चाहता था, मगर आमना को इसका लम्सनाक वार गुजरा। उसने अपनी जल्दी से अपना हाथ खींचने की कोशिश की, मगर अब वो लोग हद से बढ़ रहे थे। वैसे किसके साथ पहले रात गुजारना चाहोगी? अल्फाज थे कि पिघला हुआ शीशा जो आमना के कानों में जाता हुआ महसूस हुआ। सर प्लीज़, बिहेव में रहें आप गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो इस बार कुछ दरिश्तगी से बोली थी कि वो सारे कहके लगाकर हंस पड़े। अगर ऐसी लड़की नहीं हो तो यहाँ फिर उमैर की इस नाइट क्लब में क्या कर रही हो? अल्फाज थे कि पिघला हुआ शीशा जो एक बार फिर आमना को अपने कानों में जाता हुआ महसूस हुआ। नाइट क्लब? वो यकीन करना चाह रही थी, मगर यकीन नहीं हो रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहूँगा, इसके बाद बेशक जिसको मर्जी तुम सेलेक्ट कर लेना। एक आगे बढ़ने लगा, मगर आमना के चेहरे पर खौफ, हरास, डर के गहरे साए नुमाया हुए। वो बामुश्किल उनसे अपना आप आज़ाद करवाती उस शख्स को धक्का देती भागी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये आयान ने क्या किया। वो समझ गई थी, उन लोगों के इरादे बहुत बुरे थे। उमैर ऊपर जाने के बाद खुद गायब हो गया था। अरे यार, ये तो बाकी, जल्दी पकड़ो इसमें, इनमें से एक ने दहाड़ा था। मगर जब तक वो बाहर निकली तब तक गार्ड्स कुछ फासले पर ही खड़े थे, इसलिए गार्ड के देखने से पहले ही वो सड़क पर भाग गई। जब तक गार्ड्स उसके पीछे भागे वो काफ़ी दूर निकल गई थी, और ये उसकी बचपन की खासियत थी। वो हमेशा से ही भागने में फर्स्ट आती थी, इसलिए शायद आज इसकी खूबी उसके काम आ गई थी। उसने एक ऑटो रोका और जल्दी से घर का एड्रेस बताया। वो बहुत बुरी तरह कांप रही थी। उमैर जैसा शख्स कैसे उसके साथ ऐसा कर सकता था? उसे गलत नीयत से अपने साथ लेकर गया था। आमना की आंखों से आंसू बहने लगे, जूड़ा खुल गया, गले में दुपट्टा भी नहीं था। उसे इतनी जिल्लत महसूस हो रही थी कि कोई हद नहीं। अयान से इस हद तक घटियापन की उसे उम्मीद नहीं थी। उसने किन लोगों में से नौकरी दिलवा दी थी? वो बामुश्किल ही घर पहुंच सकी थी। रात के 10 बज गए थे जब वो घर पहुंची। सारा चेहरा रो रो कर सुर्ख हो गया था। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुल गया। दहलीज पर अम्मा खड़ी थी। वो जल्दी से अम्मा के सीने से जा लगी और अम्मा ने हैरानी परेशानी से आमना को देखा। क्या हुआ आमना, क्यों परेशान हो? तुमने तो कहा था कि तुम काम से लेट आओगी, फिर रो क्यों रही हो? अम्मा के दिल में होल पड़े, वो बस रोती ही जा रही थी।
बमुश्किल अम्मा इसे अपने साथ लिए अंदर दाखिल हुई, मगर सामने का मंजर देखते आमना घबरा गई। सामने कोई बहुत खूबसूरत, हैंडसम और पुरकशिश नौजवान 3 पीस सूट में मलबूस अब्बा के साथ बैठा हुआ था। जिंदगी में पहली बार आमना ने उस शख्स को देखा था, मगर वो जो कोई भी था बहुत ही खूबसूरत था, और उसकी वो हल्की बूरी आंखें, ऐसा लग रहा था सारा मशरिक का हुस्न उसकी आंखों में सिमट आया हो। वो हैरानी से आमना और अम्मा को देख रहा था। आमना एकदम से घबरा गई। उसे अब हर शख्स से ही खौफ आने लगा था। क्या हुआ चाची? उसने परेशानी से पूछा, और लफ्ज़ चाची पर वो हैरान हुई। ये कौन है? आमना ने फटी फटी निगाहों से किसी गैर मर्द को अपने घर में देखते हुए मुश्किल पूछा। अब्बा का चेहरा जिल्लत के एहसास से सुर्ख पड़ गया। ये तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? अब्बा ने कुछ ऊंधे लहजे में कहा, तो आमना को अपनी हालत का अंदाज़ा हुआ। वो अब्बा, मैं अजीब सी खौफ में, हरास में वो मुब्तला थी, और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। वो नौजवान जो कोई भी था उठा और आमना की तरफ बढ़ा। किसी ने बदतमीजी की है तुम्हारे साथ? उसने जांचती निगाहों से देखते हुए पूछा। आमना ने चेहरा उठाए उस शख्स को देखा। 25 साला वो खूबसूरत शख्स कौन था आमना नहीं जानती थी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ आमना, वो चिल्लाया था। अम्मा और अब्बा खामोश खड़े थे। आमना ने इस्पात में सर हिलाया। किसने बदतमीजी की है मुझे बताओ, उसने हैरानी से पूछा, और अम्मा अब्बा को देखा। ये कौन है? जैसे उसे सदमा लग गया था कि अम्मा अब्बा से ज़्यादा कोई दूसरा इस पर रोब चढ़ रहा है। अम्मा और अब्बा के लबों को कफल लग गया। मैं आपसे पूछ रही हूँ कुछ, कौन है ये? आमना ने बेबसी से पूछा। अगले ही पल उसने देखा वो शख्स इसका हाथ पकड़ चुका था। मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। उसने हैरत से अपनी कलाई उसके हाथ में देखी थी, मगर उसकी गिरफ्त नरम ही थी। आमना की आंख एक बार फिर आंसुओं के बहने के लिए बेताब थी। कौन हो? वो बामुश्किल ही बोल सकी थी। उसने पीछे मुड़ते अम्मा और अब्बा को देखा। आपने इसे अभी तक नहीं बताया चाचू? खैर, मैं बता देता हूँ, तुम मेरी बीवी हो। अल्फाज थे कि पिघलता हुआ शीशा जो आमना के वजूद के अंदर तक उतर गया। उसने इतनी ही तेज़ी से अपना हाथ उस शख्स के हाथ से आज़ाद करवाने की कोशिश की, मगर उसकी पकड़ नरम थी लेकिन मजबूत थी। आमना को सर पे धड़ाधड़ आसमान फट रहा था। ये क्या बकवास है? वो बामुश्किल ही बोल सकी थी। ये बकवास नहीं, हकीकत है आमना। इस बार अम्मा ने दरमियान में लुकमा दिया। अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? कोई भी शख्स आएगा और मुझे अपनी बीवी कहेगा, मेरा शौहर है, और मैं मान लूँगी? क्या हो गया आपको? मैं तो इस शख्स को जानती भी नहीं हूँ। इस बार वो गुस्से से फटी पड़ी थी। पहले ही उसे बहुत जिल्लत का एहसास हो रहा था। रिलैक्स, बहुत नरमी से वो बोला था। एक तो वो बहुत प्यारा था, ऊपर से बोल भी इतना खूबसूरत रहा था कि आमना का दिल कमज़ोर सा पड़ने लगा। उसकी खूबसूरती के सामने अयान कहाँ गया वो कुछ समझ न सकी। मुझे लगता है हमें बात करने की ज़रूरत है, लेकिन पहले तुम अपना हुलिया ठीक कर लो, फिर बात करते हैं, नरमी से कहते आमना का बाजू छोड़ दिया। आमना ने माँ बाप को देखा, मगर वो खामोश थे। वो गुस्से से पैर पटकती अपने कमरे में चली गई। 10 मिनट बाद कपड़े चेंज किए और बेड पर बैठी थी। जब वो कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ। ये क्या बदतमीजी है, मेरे कमरे में क्यों आए हो? वो चिल्लाई थी, मगर मुकाबिल ने कुछ नहीं कहा, और उसके सामने ही वो ड्रेसिंग के पास पड़े स्टूल खींचते हुए बैठ गया। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए इस रिश्ते को एडमिट करना कुछ मुश्किल है, मगर मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता देना चाहता हूँ। एक बार सुन लो, फिर तुम्हारा जो फैसला होगा वो करना। वो संजीदगी मगर नरमी से उसे बता रहा था। आमना बेबसी होकर रह गई। मेरा नाम फारिस है और हम दोनों कज़न्स हैं। मेरे अब्बा बड़े भाई हैं और चाचा छोटे भाई। सालों पहले अब्बा अपनी नौकरी के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते थे, मगर दादा को उस बात का यकीन नहीं था कि अब्बा बाहर जाकर फिर इस मुल्क के होकर रह जाएंगे और शायद कभी पाकिस्तान ना आ सके और अपने छोटे भाई को भूल जाए, अपने रिश्तों को सेक्रीफाइस ना करते। इसलिए दादा ने फैसला किया कि बाहर जाने से पहले तुम्हारा और मेरा निकाह कर किया जाए। तब तुम सिर्फ 3 साल की थी। दादा की ये शर्त थी, वरना वो अब्बा को बिरून मुल्क भेजने के लिए भी तैयार नहीं थे, और अब्बा हमें भी साथ लेकर जाना चाहते थे। इसलिए दादा की शर्त मान गए और हमारा निकाह हो गया और मैं बाहर चला गया। मगर वक्फे वक्फे से मुझे दादा याद दिलाते थे कि तुम मेरे निकाह में हो। फिर उनकी वफ़ात के बाद मुझे हमेशा मम्मा याद दिलाती थी कि मैं एक लड़की को अपने पीछे छोड़ कर आया हूँ।
तुम मेरे निकाह में हो, तुम मेरी इज्जत हो और मुझे हर हाल में तुम्हारा मुहाफिज बनना है, तुम्हारी हिफाजत करनी है और तुम्हारे अलावा किसी दूसरी लड़की को नहीं देखना। मेरी माँ बहुत अच्छी हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा सबक देती हैं। वहाँ रहते हुए गैर मुल्क में जैसी लड़कियाँ रहती हैं, उन हालात में अपनी हिफाजत करना बहुत ही मुश्किल मरला है आमना, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर खुद को हर गुनाह से बाज रखा। 1 साल पहले मैं अपने एक काम के सिलसिले में पाकिस्तान आया था, तब शायद तुम मैट्रिक के पेपर दे रही थी। तुम तो पहली बार तुम्हें देखा था जब मैं घर से बाहर निकल रहा था। चाचू से मिलने के बाद तुम तो स्कूल से वापस आ रही थी। आमना ने याद करने की कोशिश की, मगर उसे कुछ खास याद नहीं आया। बस इतना याद था कि एक दिन वो घर आई तो कोई शख्स उनसे घर से निकलता गाड़ी में बैठ रहा था। वो समझी अब्बा को कोई मिलने वाला होगा। तुम्हें पहले नज़र देखते मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ज़िंदगी मुझे इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की नहीं मिल सकती थी। तुम बहुत खूबसूरत हो और इससे ज़्यादा तुम मेरी इज्जत हो, मेरे निकाह में हो। अगर तुम खूबसूरत ना भी होती तब भी मैं तुमसे ही शादी करता, क्योंकि मैंने सालों तुम्हें सोचा है। और आज भी मैं इसी सिलसिले में चाचू से मिलने के लिए आया था कि अब वक्त आ गया है कि आमना को सच्चाई बता देनी चाहिए। खैर अब्बा और अम्मा तो वहीं रहेंगे, लेकिन मैंने सोच लिया है कि मैं पाकिस्तान में ही अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँगा और हम दोनों शादी के बाद यहीं पर रहेंगे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो कितनी इज्जत से पूछ रहा था कि आमना की आंखें डबडबा गई। आंखों के सामने अयान का चेहरा घुमा। वो नफ़ी में सर हिलाती दोनों हाथ चेहरे पर रख के फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने पर फारिस को बुरा लगा था। आमना प्लीज़ रो तो मत, मुझे बताओ क्या हुआ है? तुमने वैसे कपड़े क्यों पहन रखे थे? क्योंकि जहाँ तक मुझे चाचू ने बताया तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनती। क्या हुआ था, कहाँ गई थी? वो परेशानी से उसके दोनों हाथ चेहरे से हटाते उससे पूछ रहा था। तो आमना ने बहते आंसुओं के दरमियान उसे सारी कहानी बता दी। उसे सुनते फारिस की रगों में खून का उबाल एकदम से तेज हुआ। ये अयान कौन है? सख्ती से पूछा। आमना घबरा गई। वो मैं और अयान, उसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। क्या आमना बोलो? और नरमी से पूछ रहा था। मैं तो अयान से मोहब्बत करती थी और मैं ये सोचती थी कि मेरी शादी तो सिर्फ अयान से होगी, लेकिन ये निकाह उसको तो मुझसे सिर से इल्म ही नहीं था, क्योंकि मेरे साथ ऐसा। वो चिल्लाई थी। फारिस की आंखों में शायद गुस्सा उभर आया था, शायद जख्मीपन, मगर वो कुछ ना कह सका। तो तुम्हें अयान से शादी करनी है? सवाल लिया आईब्रो झुकाकर पूछा। आमना ने रोते हुए इस बात में सर हिलाया और फारिस की रगों में खून का उबाल तेज हुआ। वो अपनी बेबसी पर अचानक ही हंस पड़ा। यकीन नहीं हो रहा कि ज़िंदगी के 14 साल जिस लड़की के लिए वो बाहर रहकर खुद को महफूज रखता रहा, वो आज किसी और की हो गई। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो आमना? वो भड़बड़ाया था। तो आमना को भी गुस्सा आ गया। मुझे क्या पता था कि मैं किसी के निकाह में हूँ? उसकी आंखों में गुस्सा और तकलीफ थी। ठीक है, अगर अयान तुमसे शादी के लिए तैयार होगा तो मैं खुद तुम्हें तलाक दे दूंगा। वो इतनी जल्दी मान गया कि आमना हैरान, परेशान और बेयकीन थी। क्या सच में? मगर अम्मा अब्बा? उसने परेशानी से पूछा। फारिस की आंखों में कुछ तकलीफ सी आंट ठहरी, जो साफ आमना महसूस कर सकती थी। चाचू से मैं खुद बात कर लूँगा, उनके लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मगर उससे पहले तुम्हें अयान का चेहरा देखना चाहिए कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था। आमना समझ ही ना सकी। क्या मतलब? वह हैरान थी। तुम कितनी भोली और मासूम हो आमना। तुम्हें नहीं लगता कि अयान ने तुम्हारा इस्तेमाल करने की कोशिश की है? तुम्हें वहाँ ऑफिस में भेजा, वो कौन था? अयान था ना? तुम कितनी अंधी हो गई हो। अयान भी उन सब के साथ मिला हुआ है। उसकी बात सुनते आमना का चेहरा जिल्लत के एहसास से सुरख पड़ा। अब तुम मुझे अयान के खिलाफ भड़का रहे हो? तलाक नहीं देना चाहते तो मत दो, मगर मुझे अयान के खिलाफ मत भड़को, वो गुस्से में बोली थी। फारिस ने नफ़ी में सर हिलाया। देखो आमना, तुम गलत समझ रही हो। मैं ये साबित कर सकता हूँ, ये सब कुछ करने वाला अयान ही था। तो ठीक है, साबित कर दो कि उन सब के पीछे अयान का हाथ था। अगर वह अयान वाकई बुरा निकला तो मैं खुद तुमसे शादी करूँगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ। मैं अयान की भी शक्ल तक नहीं देखूंगी। वो अपने आंसू साफ करती पुख्ता लहजे में बोली थी। उसकी बात सुनते फारिस को लबों को एक पुरसुकून मुस्कुराहट ने छुआ। ओके डन, ठीक है, फिर सुबह उस बारे में बात करेंगे। फारिस अब सोच रहा था कि उसे किस तरह आमना के सामने अयान की हकीकत लानी है।
एक मिनट, यहाँ बैठो और मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब दो। फारिस उससे पहले उठकर कमरे से बाहर निकलता। आमना गुस्से से गरजी, कैसे सवाल? उसके चेहरे पर उलझन थी जो साफ फारिस देख सकता था। तो वापस बैठ गया। जब मैं तुम्हारे निकाह में थी तो मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? तुम्हें इतना तो पता ना कि तुम्हारी एक बीवी है, तो इसका खर्चा भी उठाना है। वो गुस्से से बोली थी। वो किसी इस्तेहाक से तुम्हारी बीवी कह रही थी कि फारिस के लबों को मुस्कुराहट छू गई। उसकी आंखों के चमक देखते हुए आमना ने चेहरा मोड़ लिया। इसकी आंखों में खफत आन ठहरी। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं बस ये चाहता था कि तुम 18 साल की होने के बाद तुम्हें इस निकाह के बारे में बताऊं, और कुछ महीनों बाद तुम 18 साल की भी होने वाली हो। फारिस ने मासूमियत से बताते कंधे उचकाए थे। मगर फिर भी ये ज्यादती है, आमना बड़बड़ाई थी। फारिस मुस्कुरा दिया। तुम्हारी बेहतरी और भलाई के लिए ही था और तुमसे छुपाया गया था, मगर मुझे लगता है मैंने गलत किया। चलो खैर, इस बारे में तुम मुझसे शिकायतें बाद में करना, पहले मुझे तुम्हारे सामने इसकी हकीकत बतानी है। इतना कहते वो कमरे से बाहर निकल गया। पीछे आमना गहरी सोच में डूब गई। सारी रात वो एक पल के लिए भी न सो सकी। क्या ऐसा हो सकता है कि अयान ने जानबूझकर आमना का इस्तेमाल किया? मगर ऐसा क्यों करेगा? वो तो इससे मोहब्बत करता था। नहीं, वो जानती थी फारिस को गलत साबित करना था ताकि फारिस को तलाक देनी पड़े। वो बहुत खुश थी। अगली सुबह ही नाश्ता करने के बाद वो दोनों घर से बाहर निकल आए। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने फारिस को देखते हुए पूछा। हम अयान का पीछा करने वाले हैं, उस पर नज़र रखते हैं। अगर तो तुम्हारा अयान सच्चा हुआ तो फिर उस शख्स से नहीं मिलेगा जिसके पास तुम काम करने गई थी, लेकिन अगर अयान भी उन सब से मिला तो उस शख्स के पास जरूर जाएगा। फारिस की बात में वजन था। सबसे पहले वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। तुम्हारे पास गाड़ी भी है? आमना ने कुछ खुशगवार हैरत से उससे पूछा। फारिस के लबों को मुस्कुराहट नहीं छुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा खासा कमाता हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो रोज़ ऐसी गाड़ी में घुमा सकता हूँ। फारिस ने खुले दिल से ऑफर की और लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। आमना देख सकती थी कि वो हंसी मजाक के मूड में है, लेकिन आमना संजीदा हुई। नहीं, इससे अच्छी तो अयान की बाइक है। वो मुंह में बड़बड़ाई थी। फारिस लब भींच गया। अब उसके सामने वो किसी गैर मर्द का नाम ले रही थी, उसके निकाह में होने के बावजूद भी। मगर खैर, वो इसे मौका दे रहा था। उसके बाद वो लोग गली में थोड़ा सा आगे निकले, जहाँ से अयान अपने घर से निकलता बाइक पर बैठ चुका था। क्या हम इसका पीछा करेंगे? आमना ने फारिस को देखते सवाल पूछा। हाँ, मगर एक फासले पर रहने के बाद। इतना कहते वो संजीदगी से ड्राइव करने लगा। फारिस के हाथों को देखते आमना साकित रह गई। वो बहुत महारत और बहुत खूबसूरती से गाड़ी चला रहा था। उसका स्ट्रिंग व्हील घुमाने का अंदाज ही ऐसा था। कितनी ही देर आमना उसके हाथों में खो गई। वो साफ उसकी नज़र अपने हाथों पे महसूस कर सकता था। फिलहाल मुझ पर नहीं, अयान पर नज़र रखो। फारिस की आवाज़ पर वो उछल पड़ी। ऐसा लगा जैसे चोरी पकड़ी गई हो। नफ़ी में सर हिलाती वो सामने देखने लगी, जहाँ अयान शायद अपने कॉलेज जा रहा था। और इससे एक फासले पर गाड़ी चला रहा था। उसने देखा कि अयान कॉलेज जाने के बजाय कहीं और जा रहा था। ये कॉलेज का रास्ता तो पीछे रह गया। वो बेबसी से बड़बड़ाई थी। लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका है। वो बड़बड़ाया था, मगर उसका बड़बड़ाना साफ आमना सुन चुकी थी। लगता है किसी से मिलने जा रहा है, फारिस ने अपना अंदेशा बताया, मगर आमना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जब तक अपनी आंख पर यकीन न कर लेती तब तक वो अयान के खिलाफ कुछ नहीं कहने वाली थी। उनकी गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रुकी। वो साफ देख सकती थी कि अयान बाइक वहीं रोकता किसी रेस्टोरेंट में जा रहा था। चलो, फारिस ने संजीदगी से कहा। क्या मतलब? हम उसके सामने जाएंगे? आमना ने नागवारी से पूछा। चलो आमना, उसकी बात को इग्नोर करता अपनी बात पर जोर देता हुआ बोला। तो चार न चार आमना को भी गाड़ी से उतरना पड़ा। वो उसके साथ रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। आमना आसपास अयान को ढूंढने लगी, मगर सामने का मंजर देखते आमना को बेहद हैरान हुई। वो उमैर खान के सामने खड़ा उससे कोई बात कर रहा था। उन दोनों में शायद कोई बहस चल रही थी और आमना फटी फटी निगाहों से उनको देख रही थी। देखा, मैं तो तुम्हें कह रहा था, ये इनसे मिला हुआ है। फारिस ने अपनी बात पर जोर दिया, मगर आमना नफ़ी में सर हिलाती रह गई। यकीनन वो इस बात पर लड़ रहा होगा कि उसने मेरे साथ बदतमीजी क्यों की। उसने एक बार फिर अयान को डिफेंड किया तो फारिस नफ़ी में सर हिलाता रह गया। तुम्हारे पास मोबाइल है? संजीदगी से पूछा।
आमना ने इस बात में सर हिलाया। दिखाओ। आमना ने बिना कुछ कहे अपना मोबाइल उसके हाथ में रख दिया। उसने अपना नंबर मिलाया। ये तुम्हारे मोबाइल से इस वक्त मेरे फ़ोन पर कॉल किया गया है, ठीक है? फिर उसने अपना मोबाइल सामने किया और आमना की तरफ से आती कॉल रिसीव करी। अब मैं वहाँ जाकर उनके पास वाले टेबल पर बैठूंगा। तुम यहाँ अपने मोबाइल पर सुनने की कोशिश करो क्या बातें कर रहे हैं, शायद तुम्हें अपने कानों पर यकीन हो जाए। इतना कहते फारिस उसके हाथ में मोबाइल थमाता अयान के और उमैर के पास से गुजरता कुछ फासले पर जाकर बैठ गया। अब उमैर और अयान का झगड़ा वो साफ सुन सकता था। उसने अपना मोबाइल कुछ इस अंदाज में पकड़ रखा था कि उन दोनों के झगड़े की आवाज़ मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही थी और उस बार आमना के कानों तक साफ जा रही थी। आमना कुछ फासले पर खड़ी और मोबाइल कान से लगा लिया। उसे फारिस को यकीन दिलाना था कि अयान वैसा नहीं है जैसा वो समझ रहा है, मगर जो अल्फाज उसके कानों ने सुने वो सुनते ही आमना के पाँव तले से ज़मीन खिसक गई या सर पर आसमान फटा। वो समझ न सकी। तुमने तो कहा था लड़की बहुत भोली है और मासूम है और हर काम कर लेगी। ये उमैर खान की आवाज़ थी। अयान कुछ झंझला रहा था। तुम लोगों ने इसे डरा धमका कर भेजा होगा, वरना मैंने तो उसे बहुत कुछ समझा कर भेजा था। अयान की झंझलाहट वाज़िया थी। तुम इसे क्या समझा कर भेजा था मुझे नहीं पता, मगर मैंने तुम्हें एक पूरा 1 लाख रुपया दिया था उस लड़की के साथ काम करने के लिए। तुमने कहा था वो लड़की मेरा हर काम करेगी, और जानते हो कल रात मेरी 3 अहम मीटिंग्स और प्रोजेक्ट्स सब कुछ तुम्हारी उस लड़की ने तबाह कर दिया। अब तुम मेरे 1 लाख रुपए वापस करो। उमैर खान गुस्से से अयान पर दहाड़ रहा था। अयान के चेहरे पर भी गुस्सा के वाज़िह तासुरात थे। देखो, आमना काम करना चाहती थी, उसे पैसों की ज़रूरत थी और यकीन तुम लोगों ने उसे परेशान करके वहाँ से भागने के लिए मजबूर किया होगा। अयान की डिटाई में कोई फ़र्क न आया था। उमैर को गुस्सा आ रहा था। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता वो क्यों और कैसे भागी और क्या वजह थी, मगर तुमने कहा था कि लड़की काम करेगी, इसलिए मैंने तुम्हें इस काम के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, मगर लड़की ने काम नहीं किया। अब मुझे मेरा 1 लाख रुपया वापस करो। उमैर खान को गुस्सा आ रहा था। मेरा काम सिर्फ लड़की को तुम्हारे पास भेजना था, वो कैसे काम करती है तुम्हारा मसला था, और मुझसे वापस पैसे किस चीज़ के मांग रहे हो? वो 1 लाख तो मैं कल ही खर्च कर चुका हूँ। अयान ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। उमैर का मीटर लम्हों में शॉर्ट हुआ। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने बेइख्तियार एक मुक्का अयान के चेहरे पर दे मारा। फारिस के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ और आमना वो तो पत्थर की हो गई। उसके हाथों से मोबाइल फ़ोन छूटते ज़मीन पर गिर गया। वो कितनी देर साकित निगाहों से अयान को देखती रही। इसका मतलब साफ था, अयान जानता था कि उससे कुछ गलत काम करवाने की नीयत से बुला रहे हैं। सब कुछ जानते बूझते वो कैसे आमना का किसी मुसीबत में छोड़ सकता था। ये कैसी मोहब्बत हुई? वो मोहब्बत के दावे तो करता था, मगर वाकई वो इसी मोहब्बत नहीं करता था। सालों की मोहब्बत सारी लम्हों में ज़मीन तले सो गई। उसके वजूद में हरकत हुई। अयान नाक से निकलता खून और अपना चेहरा साफ कर रहा था। वो आगे बढ़ी और बिना उमैर अयान को सोचने समझने का मौका दिए उसने एक थप्पड़ अयान के चेहरे पर दे मारा। इस बार जो सुनाटा सारे रेस्टोरेंट में छाया वो देखने के काबिल था। सारे लोग खाना छोड़े उस लड़की को देख रहे थे जिसने सामने खड़े लड़के के चेहरे पर थप्पड़ दे मारा था। अयान हैरत ज़दा सा रह गया। आमना, उसके लब फड़फड़ाए थे। खबरदार, अगर आज के बाद तुमने अपनी ज़ुबान से मेरा नाम लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इन लोगों के सामने किसी शिकार की तरह फेंकने की? तुम तो मेरे दोस्त थे ना अयान, तुम तो मुझसे मोहब्बत के दावे करते थे। फिर ये कैसी मोहब्बत और कहाँ की मोहब्बत? तुमने तो कुछ नहीं छोड़ा। क्या मोहब्बत ऐसी होती है? और जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उसे अपनी इज्जत समझा जाता है, और तुमने मुझे ही बेइज्जत करने की कोशिश की। तुम्हारे लिए मैं 1 लाख कमाने के लिए कोई जैकपॉट थी। वो चिल्लाई थी और उसका चिल्लाना सबने सुना। उसका जिस्म हाँप रहा था। यकीन नहीं हो रहा था कि जिससे मोहब्बत के दावे की वो ऐसा निकलेगा। तुम गलत समझ रही हो आमना, ऐसा कुछ नहीं है। अयान ने मासूम बनने की कोशिश की, मगर आमना का हाथ एक बार फिर से उठा और अगले ही पल एक और थप्पड़ अयान के चेहरे पर दे मारा। मैंने कहा ना अभी कि मेरा नाम दोबारा लेने की कोशिश की तो मुंह तोड़ दूंगी, और मैंने कुछ गलत नहीं समझा। तुम लोगों की सारी बकवास अपने कानों से सुन चुकी हूँ मैं। वो चिल्लाई थी और फिर एक पल के लिए उमैर खान को दिखा
जिसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। यकीनन उसे भी आमना से ऐसी बहादुरी की उम्मीद नहीं थी। और तुम ऐसे डील करते हो अपने कस्टमर्स के साथ? ये अमीर और सुरसोख वाले बिजनेस पार्टनर्स को देखने के बाद तुम वहाँ उनके सामने लड़कियों को फेंकते हो कि ये लो लड़कियों को नोच लो, उसके बदले मुझे इतने लाखों और करोड़ की बिजनेस डीलिंग करने दो। वो चिल्लाई थी। फारिस एक साइड पर खामोशी से आमना को बोलते हुए सुन रहा था। उसने एक बार भी आमना को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि आमना की ये जंग है और आमना को अकेले ही लड़नी चाहिए। हाँ, मगर वो इसके पीछे उसका सहारा बने खड़ा था। आमना का चेहरा अब जिल्लत के एहसास से सुर्ख पड़ गया। फिर उसका हाथ उठा और इस बार उसने उमैर खान के चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। ये उमैर खान वो उमैर खान नहीं था जिसके साथ वो कल ऑफिस में बैठे काम डिस्कस कर रही थी। ये उमैर खान उस थप्पड़ का हकदार था। आज के बाद अगर तुमने किसी भी लड़की को इस तरह इस्तेमाल करने के बारे में सोचा तो खुदा की कसम तुम्हारा अरबों खरबों का बिजनेस रातों रात खा जाऊंगी। तुम जानते नहीं हो मुझे, ये आमना रियाज क्या चीज़ है। वो चिल्लाई थी। अब फारिस उसके करीब आ चुका था। उसका हाथ नरमी से पकड़ा। रिलैक्स, आज के लिए इतना काफ़ी था। इन दोनों को मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा। फारिस को देखते बेख्तियार आमना को रोना आया। वो जो कल तक अयान पर अपने जज्बात बांधती थी, आज अयान के सामने तो बहादुर बन गई। मगर फारिस को देखते उसकी आंखें नम हुई। उसका दिल चाहा उसका सहारा मिलते मज़ीद ऊंची आवाज़ में फूट फूट कर रो पड़े। दिल टूटा था, सीने से खून भी रस रहा था। अयान हैरत से आमना के हाथों में किसी और का हाथ दिख रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आमना का हाथ पकड़ने की? अयान आमना की सारी बहस को लम्हों में इग्नोर करता कुछ गुस्से से गरजा। फारिस के चेहरे पर जमानों की सख्ती आ गई। उसका एक हाथ अभी तक आमना के हाथ में था, दूसरे हाथ से उसने अयान का गिरेबान पकड़ा। मेरी हिम्मत अभी तुमने देखी ही कहाँ है? मेरे बॉस पूरा हक है इसका हाथ पकड़ने का, मगर आज के बाद तुम मेरी बीवी की तरफ आंख उठा कर भी देखा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके मैं कुत्तों को खिला दूंगा। वो बोला नहीं था, वो गरजा था और लफ्ज़ बीवी पर अयान साकित रह गया। ये क्या बकवास कर रहा है आमना? कितनी देर बाद उसने आमना से पूछा। मैं तुम्हें वजाहत देना ज़रूरी नहीं समझती, वो चिल्लाई थी। अभी रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई, मगर जाने से पहले उसने आखिरी बार अयान को देखा। तुम आज अभी और इसी वक्त मेरे लिए मर गए हो। अयान, तुम पर और तुम्हारी मोहब्बत पर लानत हो। उसने इस कदर नफरत से कहा कि अयान साकित रह गया। रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद वो गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से खोलती अंदर बैठी, मगर अब उसके पास चेहरे का रंग तब्दील हो गया था। जो लड़की अंदर बहादुर बन के आई थी वो बाहर वैसी नहीं रही थी। वो बेसाख्ता दोनों हाथ चेहरे पर रखे फूट फूट कर रोने लगी। फारिस ने अफसोस से उसे देखा। जब उसका रोना बर्दाश्त ना हुआ तो वो बोल उठा, चलो अब बस करो। आमना, कितना रोगी? इसलिए कहते हैं कि मोहब्बत करना जुर्म नहीं है, लेकिन किसी गैर मर्द पर भरोसा करना ये एक लड़की की अपनी गलती होता है। तुमने क्यों अयान पर भरोसा किया? तुम बेवकूफ़ हो। तुम्हें नहीं पता कि मैट्रिक बड़ी लड़की को कोई नौकरी नहीं देता? तुम्हारा अपना दिमाग काम नहीं करता, वो गुस्से से बोला था। आमना ने रोते हुए नफ़ी में सर लाया। वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैं समझती थी कि मेरे लिए सब कुछ कर गुजरेगा, लेकिन मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और दूसरा, मुझे पढ़ना था, अपने लिए कुछ बनना था, और अम्मा पापा के पास इतने पैसे नहीं थे। मुझे क्या पता था कि मुझे धोखा दिया जाएगा। आंसू उसकी आंखों से बहते जा रहे थे। फिक्र मत करो, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसके साथ क्या करना है वो मुझ पर छोड़ दो। मेरी ऑफ़र अभी भी वैसी ही है। शादी करोगी मुझसे? वो एक बार फिर से पूछ रहा था। आमना ने भीगी आंखें उठाए उसे देखा था। ये शख्स उसका मुहाफिज था, और क्यों ना होता जो सामने वाले से झगड़ा करे, लड़े और विलन को मार दे। मुहाफिज हर वो शख्स है जो आपको सही और गलत की तमीज़ सिखा दे, जो आपकी आंखें खोल दे। और वाकई वो इसका मुहाफिज बन गया था। और अब भी वो किसी इस्तेहाक के साथ उसे दोबारा शादी का पूछ रहा था। क्या इससे ज़्यादा इज्जत कोई आमना को दे सकता था? मगर मुझे पढ़ना है, वो बेबसी से बोली तो हंस दिया। तो किसने मना किया है? पढ़ो, अपने शौक़ पूरे करो। शादी 2-3 साल बाद कर लेंगे, मुझे कोई मसला नहीं है। मेरे लिए तुम्हारी ख्वाहिश ज़्यादा वैल्यू रखती है। उसकी बात सुनते आमना को गुस्सा आया। पढ़ने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, और मैं ठहरी गरीब। वो नागवारी से बोली थी।
जैसे हलक तक आंसू अटक गए हों। फारिस को अफसोस हुआ। सॉरी, मैं भूल गया था, अब तो तुम मेरे निकाह में हो, तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी हो तुम। तुम्हारा सारा खर्चा मेरे सर पर है। तुम्हें जितना पढ़ना है, जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा खासा मेरा बिजनेस है, और मेरी बीवी इस तरह गरीबी की बातें करे, अच्छा नहीं लगता। बताओ कितने पैसे चाहिए? फौरन अपना वॉलेट निकालता उसमें से सारे पैसे निकालते आमना के हाथ पर रख चुका था। आमना ने हैरानी से उसे देखा। वो कम से कम 30 या 40 हज़ार थे। जितने भी पैसे चाहिए आज के बाद मुझे बताना। अब तो करोगी ना मुझसे शादी? वो तीसरी बार पूछ रहा था। इस बार आमना ने रोते हुए इस बात में सर लाया, मुझे कभी माजी का ताना न देना। वो परेशान हुई थी कि शायद उसे अयान के हवाले से कभी ताना दे। वो हंस दिया। मुझे क्या तुमने कोई जालिम टिपिकल शौहर समझा हुआ है? आमना खामोश रही, वो कुछ नहीं बोली। तो वो एक बार फिर हंस दिया। अब वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। वो वापस घर जा रहे थे, मगर फारिस हंसता जा रहा था। मूड पर छाई बेजारियत हवा हुई। वो पुरसुकून हो गया था कि अब आमना सिर्फ उसकी है। बेशक बेहतरीन है वो मर्द जो औरत की राय को वैल्यू दे, उस पर ज़बरदस्ती अपनी मर्जी मुसल्लत ना करे। वही असल मुहाफिज और असल मर्द होता है।